हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न संस्कृत नाउ। सो आज हम टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द इंग्लिश चैप्टर which was based on the NCERT only. So today we'll be studying about the NCERT English chapter, and the chapter name is the Summit Hill, Summit Within. तो ये जो Summit Within का चैप्टर है, एक मिनट, now it's good. So before you read this chapter, we'll be understanding about the chapter only. मतलब in detail में पढ़ने से पहले हम इस part को read करेंगे. Let us read now. So Major HPS अहूवालिया. So ये जो HPS है ना, H.P.S, ये जो अहूवालिया साहब हैं, इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है. मेजर हरिपाल सिंह अहूवालिया, जो कि बॉर्न हुए थे. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेजर हरिपाल सिंह. तो ये यहाँ पे मेजर हरिपाल सिंह है, जिनकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है HPS. तो ये मेजर HPS यानी मेजर हरिपाल सिंह अहूवालिया. तो ये जो मेजर HPS थे अहूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इन 1965. इट मीन्स दैट इट इज सेइंग दैट जो मेजर हरिपाल सिंह जी थे, HPS अहूवालिया जी थे, उन्होंने वो द फर्स्ट मेंबर थे इंडियन के मेन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द इंडियन to climb the Mount Everest in 1965. So this will be the main point. This can be asked as a question also, that who was the first person climb the Mount Everest in which year. So you will be giving the answer. Major HPS or Major Haripal Singh Ahluwalia was the first member of the India to climb the Mount Everest in 1965. So let's coming to the next one. How did he feel when he stood the highest point in the world? It is saying that how did he feel, वो कैसा महसूस कर रहे थे वर्ल्ड में, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब हाईएस्ट पीक थी ये जो माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है. लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट. समिट मीन्स होता है कि द टॉप, मतलब एकदम टॉप पे, पीक पे पहुंचना. एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क of climbing the summit within. So let us talk about the chapter. So here you can see the starting of the chapter. These are the word meanings. ठीक है. Of all the emotions which surged through the me as I stood on the summit of the Everest. This is the words of the Ahluwalia. He is saying that जितनी भी भावनाएं, which surged, surge means sudden wave or arose suddenly intensely. सो ऑफ द ऑल इमोशन, सारी भावना जो कि एकदम से आ गई, थ्रो मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑन द टॉप ऑफ द एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ द पेनोरामा बिलो अस. मीन्स दैट जब हम ये जो थे अहूवालिया, जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो एकदम से पहुँच गए, मतलब वो कहना चाह रहे हैं, मतलब कब पहुँच गया पता ही नहीं चला. सारी उन्होंने भावना अपनी व्यक्त करी हुई है यहाँ पे. लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, जहाँ पे सबका नज़ारा दिख रहा था. The dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. हमें वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं गॉड, वो थैंक गॉड कर रहे हैं, मतलब गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं कि शुक्र है मैंने ये क्लाइंब कर लिया ये एवरेस्ट. However, instead of being jubbly land, there was a tinge of sadness. Jubilant means the action of so happiness. Happiness का एक action. So, however, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down?
By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. He is saying that by जब मैंने क्लेम करा इसको एवरेस्ट को, ये लाइन जो है वो कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जब क्लेम करा एवरेस्ट को, द summit of the Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. वो मतलब बहुत ही डीप सेंस, मतलब खुशी, मतलब गदगद हो रहे थे, एंड थैंकफुलनेस, थैंक गॉड, ऐसे ऐसे करके वो कह रहे थे. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट एट अ टाइम लाइफ टाइम. द एक्सपीरियंस इट चेंजेस यू कम्प्लीटली. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन. As I look back at life there after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. As he is saying this paragraph that वो कहना चाह रहे हैं कि क्लिम्बिंग द एवरेस्ट यानी समिट पीक पे जब मैं पहुंच गया वो बहुत ही खुशहाल थे. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. उन्होंने ये पहली अचीवमेंट थी, सबसे बढ़िया और एकदम मज़ेदार अचीवमेंट थी, एडवेंचरस. द एक्सपीरियंसेस जो थी हमें चेंज कर दिया पूरी तरीके से उनको. और आगे उन्होंने बताया हुआ है कि द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन्स द नेवर सेम अगेन. एज ही लुक मतलब एज द अहूवालिया सर लुकिंग बैक एट हिज द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, he cannot help remarking about the summit and the other summit of mind. No formula, no easier to claim. ये बहुत ही आसान नहीं था ये क्लेम करना, बहुत ही कठिनाइयों से उन्होंने ब्रीदिंग जो होती है ना वहाँ पे माउंटेन्स पे, ये जो माउंटेन्स होती हैं यहाँ पे ब्रीदिंग का बहुत सांस लेना, यहाँ पे जो आदमी जो नाक से सांस लेता है ना, सांस लेना बहुत मतलब एटमॉस्फेयर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चलता है. एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो जो सांस लेना ब्रीदिंग लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है. अगर जो एल्टीट्यूड है वो जब नीचे गिरने लगता है तो ब्रीदिंग जो है वो मतलब ये समझ लो कि माउंटेन पे जब जाते हैं ना तो ब्रीदिंग की जो बहुत प्रॉब्लम्स होती है. सो आगे उन्होंने बताया दिस इज द पिक्चर ऑफ द मिस्टर अहूवालिया, हरिपाल सिंह अहूवालिया. As you can see here, even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question. जैसे ही उन्होंने summit जैसी क्रॉस कर दी, नीचे आने लगे, तो वो एक क्वेश्चन पूछते अपने आप से कि why I had claimed the Everest? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? क्या वो मतलब सोच रहे थे कि जो फेड मतलब होता है कि स्किप हो जाना, क्या मेरी जो मेमोरीज है जो मैंने यहाँ पे पहुँचा हूँ क्या स्लोली ख़त्म हो जाएंगी ये? वो ऐसा कह रहे थे अपने आप को, मतलब वो थिंक कर रहे थे कि मैं इधर तक कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, उसको क्वेश्चंस आ रहे थे उनके दिमाग में. All these thoughts led me to the question myself to the why the people claim mountains. They are saying that why people claim, क्यों चढ़ते हैं mountains? It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, उनका जो simple answer था, as the other have said, because it is there, it presents great difficulties. जब mountain पे हम चढ़ते हैं तो बहुत ही great difficulties होती हैं. अभी जैसे मैंने बताया था breathing की problem हो जाती है, atmosphere. Man takes delight in overcoming obstacles. Obstacle means परेशानियाँ. ये जो obstacles होता है इसका मतलब होता है परेशानियाँ. The obstacles in climbing a mountain are physical. जो obstacles होती है it is a physical thing. मतलब आती ही हैं difficulties, obstacles. A climb to the summit means endurance, persistence and willpower. मतलब एक बार मतलब समिट पे पीक पे चढ़ने का तय कर लिया तो कर लिया. एंडोरेंस मतलब होता है एकदम कर लिया, तय कर लिया, एकदम विल पावर एकदम मतलब फाइनल कर लिया कि मेरे को चढ़ना है, मतलब चढ़ना है, अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. I have a more personal answer to the question. He is saying that he has one more answer of this question. From his childhood, he had been
अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ओनली, ही इज अट्रैक्टिंग बाय द माउंटेन, मतलब उसको प्रभावित करते थे माउंटेन्स. ही हैड बीन मिसरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, वो लॉस्ट मतलब ऐसा लगता था उनको मैं कहीं खो गया हूँ जब माउंटेन उनके पास नहीं थे. इन प्लेन्स में जब वो आ जाते थे नॉर्मल लैंड पे, तब वो सोचते थे कि मैं माउंटेन्स खो गया हूँ माउंटेन से ही. माउंटेन्स आर द नेचर एज इट बेस्ट, ही इज सेइंग द माउंटेन्स ब्यूटी होती है नेचर की. They are the beauty, majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are means of communion to with God. वो ऐसा उनका मानना है कि वो कहना चाहते हैं, उनका मानना है कि द माउंटेन्स जो है ना वो एक तरीके के साधन है गॉड से मिलने के, कम्युनिकेशन करने के. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, because it is the highest and the mightiest has defied many previous attempts. It takes the last ounce of the one's energy. It is the brutal struggle with the rocks and ice. वो कहना चाह रहे हैं एक खतरनाक स्ट्रगल होती है आइस के साथ और रॉक्स के साथ. जो पत्थर क्यूब्स देखे ना आपने, ये क्यूब्स हो जाते हैं जैसे हम फ्रीजर में देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें फ्रीजर में से क्यूब्स जमा देते हैं, यूं मोटी मोटी क्यूब्स होते हैं, क्यूबॉइड्स होते हैं. तो वैसे उधर उससे भी बड़ी बड़ी, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे आइस बनी होती है, गोले ये वो. तो इनसे ये बहुत ही स्ट्रगल होती है, रॉक्स बनी होती है, रॉक्स पे आइस जमी होती है यूं यूं करके. उनसे एक खतरनाक उनको स्ट्रगल झेलनी पड़ी, वो ये कहना चाहते हैं. मतलब झेलनी पड़ती है ऐसा बोला जाता है, होती भी है वैसे. तो आगे उन्होंने बताया है, अब आगे उन्होंने बताया कि वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. द पैसेज इज बैक एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. एंड देन व्हेन समिट इज क्लाइम, जब हम पीक पे चढ़ जाते हैं, देयर इज एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन मीन्स it means that something to be interesting and excitement. The joy of having done something, मतलब एक जॉय से एकदम उभरना कि मैंने कुछ किया है. द सेंस ऑफ द बैटल फॉट एंड वॉन, एक सेंस आती है हमारे अंदर कि हमने एक बैटल जंग जीत ली, और जीत ली मतलब वॉन मतलब जीतने होता है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री एंड हैप्पीनेस की फीलिंग होती है. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्ट टू द अनदर वर्ल्ड. ऐसा लगता है कि पीक पे चढ़ते ही मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पर पहुंच गया हूँ. यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ से ये जब पीक पे चढ़ जाते हैं ना, ऐसे चल चल के ऐसे कठिनाइयों से झेल झेल के, ये यहाँ पे चढ़ने के बाद है ना, यहाँ पे झंडा लगा के ऐसे लगता है उसको कि मैं दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ. वो ये कहना चाहते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. आगे लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस द चेंज विद इन माई सेल्फ. वो कहना चाहते हैं मेरे को चेंज सा नजर आता है अपने अंदर ही. So guys, this was the last part of this chapter. So इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, let's see the question answers. So as you can see here, these are the questions are comprehension and check. So let us discuss these comprehensions. अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, मतलब एवरेस्ट पे खड़े होने के बाद, ये जो एवरेस्ट है, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ. मान लो ये एवरेस्ट है, यहाँ पर आहूवालिया जी खड़े हुए हैं. यहाँ पे खड़े होने के बाद उनको कैसा फील हो रहा था? वो ओवरजॉयड हो रहे थे, मतलब खुशी से भी ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ही दुखी थे, या जबली लैंड मतलब एक थोड़े से खुश और थोड़े से सैड थे. चूज द राइट आइटम. अब इसमें आएगा पहला ऑप्शन, ओवरजॉयड. दिस इज द करेक्ट वन. लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट वन. द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, इट मीन्स दैट जो भावनाएं थी जो उसको ग्रिप करी अहूवालिया जी को, वॉज वन ऑफ द विक्ट्री ओवर हर्डल्स. हर्डल्स मीन्स कठिनाइयाँ, मतलब ऑब्स्टेकल्स ही हो गया एक तरीके. ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय और डिस्कवरी. तो इसमें द आंसर विल बी, मेरे ख्याल से इसमें थर्ड वन आएगा. यू कैन चेक ऑल्सो, ये थर्ड वन इज द आंसर. Coming to the third part, the summit of the mind refers to
अब इसमें 6th ऑप्शन दे रखा है, मार्क द आइटम नॉट रेलेवेंट। द समिट ऑफ द माइंड जो है वो किससे रेलेवेंट करता है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड spiritually, overcoming the personal ambition for common welfare, living in the world of thought and imagination, the triumph of the mind over worldly pleasures of a noble cause, a fuller of knowledge of oneself. So इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन, द ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, मतलब उन्होंने एक तरीके से अचीवमेंट हासिल करी थी, चढ़ करके उन्होंने एक अचीवमेंट ही हासिल करी थी। So these are the questions, sir. So I prefer to do it yourself only, but I will discuss that in the upcoming videos. I will be discussing these all the questions, sir. This is the second part. Second part saying that write a sentence against each of the following statement. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. So do it yourself. I prefer you. And in the next video we'll be discussing all of them, all the things. These are the all vocabulary exercises. This is the poem. So thank you very much, and if you like this video, please subscribe my channel and like this video also, so that you can be giving the notification of the upcoming videos. We'll be discussing these all the questions. Thank you.